Hello students, my name is Gargi and today in this video lecture we are going to start our poem Geography lesson. Now in this poem, the poet is in a jet and he is traveling in a jet, and when he sees the city and when he sees the world from up there, he is wondering about a few things, right? So we are going to study that what are those things that he is wondering about. Let's start with the summary. The poem displays the poet's concern for the division and friction among people. Now, what is his biggest concern right now is how people are not living together. They don't have that harmony among them. So, that's his primary concern here. The poem begins with the poet seeing the city from the jet. एक jet में है वो, and he is seeing all the cities and all the peoples from up there. He says that from that height everything seems too small. He can see the full city properly. सब कुछ obviously अगर आप height पे हो तो सारी चीजें आपको छोटी छोटी नजर आएंगी, right? So that's what's happening to him, and he can see the full city properly. पूरी city को बहुत properly देख सकता है. Also he finds that the city is not properly planned and is disorganized. अब जब उसको ऊपर से जब वो सिटी को देखता है तो उसको लगता है दैट सो डिसऑर्गेनाइज्ड, कितना अनऑर्गेनाइज्ड है ये सब, है ना? सब कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी घर बनाया हुआ है, कहीं भी लोग रह रहे हैं, तो ये कितना प्रॉपर्ली मैनेज्ड ही नहीं है बिल्कुल भी. किसने प्लान किया है ये सब? Thus it has no particular style, और कोई इसका पर्टिकुलर पैटर्न, कोई स्टाइल कुछ भी नहीं है वहां पे. तो when the jet reached a height of 1000 feet, he could see that the cities were located near the rivers or water sources. But जब height और ऊपर जाता है, एक जेट और ऊपर जाता है, 10,000 अराउंड 10,000 फीट की हाइट पे जाता है, सो he starts understanding कि जो cities हैं और जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वो वाटर बॉडीज के आसपास रह रहे हैं. ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड हैं, जितनी भी सिटीज हैं वो वाटर बॉडीज के, रिवर्स के, वाटर रिसोर्सेज के पास में लोकेटेड है. जितना भी जहाँ पानी है वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो ये चीज समझता है. Then he realizes that the availability of water resources is the reason behind the unorganized cities. यही रीजन है कि सिटीज इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसे किसी ने प्लान नहीं किया है. ठीक है, जहाँ पे वाटर है वहां पे लोग आके रहना शुरू कर दिया लोगों ने, राइट? द सिटी ग्रू एज पर द नेसेसिटीज. सिटीज जैसे जैसे नेसेसिटीज बढ़ी, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी या लोगों की जरूरत बढ़ी, वैसे वैसे सिटीज ग्रो होने लग गई. People settled near the water resources more as they require water for almost all their activities. हमें दिन भर में जब हम सुबह उठते हैं and when we go to bed, पूरे दिन में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है, राइट? He understands that the fertile land and water are the key to human existence. Fertile land, एक अच्छा लैंड, राइट, जिसमें क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं, क्योंकि वी नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव. तो अगर एक अच्छा लैंड होगा, वो फर्टाइल लैंड होगा, तो उसमें क्रॉप्स ग्रो हो सकेंगी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई फर्टाइल लैंड एंड वाटर भी चाहिए हमें, है ना, सर्वाइव करने के लिए. दीज आर द की. ये क्या है? की है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की. Thus he can see the logical reason for the development of the cities. अब उसे धीरे धीरे जैसे जैसे जेट हाइट पे पहुंचा और उसने वो सारी चीजें देखी तो उसको समझ में आया कि why these cities are so unorganized, why they are not planned properly. कोई पैटर्न क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि वाटर का कोई पैटर्न नहीं है. वाटर बॉडीज तो जहाँ होंगी वहाँ ही होंगी ना, बट सिटीज उनके आसपास स्टैब्लिश हुई हैं. Drinking water is vital to human life. Obviously drinking water तो सबको चाहिए. Water is necessary for almost all human activities such as agriculture, production, business, transport, etc. He also now is clear that the earth has more water than land. अब जैसे जैसे जेट ऊपर जाता गया और ऊपर जाता गया तो उसको ये चीज रियलाइज हुई कि अर्थ पे लैंड से ज्यादा क्या है? वाटर है. एज यू नो, अर्थ पे ऑब्वियसली लैंड से ज्यादा तो वाटर ही है. एंड ऑल्सो दैट द अर्थ इज राउंड. और उसको ऊपर और जाके स्पेस में जाके जब उसने अर्थ को देखा तो उसको क्या रियलाइज हुआ? द अर्थ इज
round. Lastly, he ponders why have people on earth built walls, boundaries and fences. अब उसको जब वो और ऊपर गया तो उसने देखा तो he can see that लोगों ने क्या किया, बाउंड्रीज बनाई हुई है, फेंसेस लगाए हुए हैं या फिर वॉल्स बनाई हुई हैं, कंट्रीज के बीच में वॉल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, ये सारी चीजें उसने रियलाइज की. द पोएट सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द अर्थ. अब उसको ये चीज भी रियलाइज होती है कि ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ज्यादा नॉलेज है अर्थ को लेके. उन्होंने सारी चीज, ह्यूमंस ने सारी चीजें समझ ली है कि अर्थ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एवोल्यूशन, सारी चीजें समझ ली है. बट have lot of knowledge about the earth, its shape, the emergence of civilization, cities, nations, everything. He knows everything. Man ने सब figure out कर लिया. But in this quest, we have attained absolutely no knowledge about how to live peacefully on this amazing planet. We have this amazing planet, right? Earth के जैसा और कोई planet नहीं है पूरे galaxy में, कोई और planet नहीं है ना? Earth ही है जहाँ पे water है, oxygen है, सारी चीजें हैं, है ना, लाइफ भी अर्थ पे ही है. सो वी हैव दिस अमेजिंग प्लैनेट. बट लोगों ने, ह्यूमन बीइंग से ये तो रियलाइज कर लिया कि कैसे ये सारी चीजें हुई, आगे क्या करना है, हाउ ऑल दिस इज गोइंग टू बी मैनेज, एवरी सिंगल थिंग. बट द ह्यूमन बीइंग, उसे ये नहीं पता है कि लोग एक दूसरे के साथ पीसफुली कैसे रहना है. वी हैव दिस ब्यूटिफुल लैंड, ब्यूटिफुल अर्थ, ब्यूटिफुल प्लैनेट, और हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं. हम एक दूसरे के साथ पीसफुली नहीं रह पा रहे हैं. He understands this. He fails to understand that why do people hate each other so much. He feels that people are selfish, jealous and have a narrow mindset. उसने ये चीज रियलाइज की कि people have so much hatred inside them, है ना, बहुत ज्यादा hatred है लोगों के अंदर, and they have this narrow mindset. दे फाइट ओवर पिटी इश्यूज. तो ये सारी चीजें उसको समझ आती हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है. उसे ये नहीं समझ आता है कि ऐसा क्यों है. उसे ये तो पता है कि ये सारी चीजें, ही कैन सी इट रियली वेरी क्लियरली, बट ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट, क्यों हो रहा है ऐसा ह्यूमन बीइंग्स के बीच में. ऑल्सो ही फाइंड्स दैट द अर्थ इज वन बट पीपल लिविंग ऑन इट हैज डिवाइडेड एंड फ्रेगमेंटेड इट. एक चीज और क्या समझ में आती है कि अर्थ तो एक ही है, पूरी अर्थ एक ही है, बट लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. He also feels that people on the planet are not living in harmony together for shallow reasons. और लोगों के reasons, if you are fighting with someone, then there has to be a solid reason. कोई तो reason होगा ना जिसकी वजह से आप उससे लड़ाई कर रहे हो. But पोर्ट ने जब देखा that people are fighting over such petty issues, मतलब ऐसे ऐसे रीजन है जो शायद होने भी नहीं चाहिए, we should just let them go. If people decide to forget their differences and stay together peacefully, this planet would be a wonderful, beautiful and amazing place to live. कि अगर लोग अपने बीच के जो differences हैं उन्हें भूल कर साथ में रहें तो can you imagine how beautiful this earth would turn into, right? So this was the summary of our chapter. बहुत प्यारा सा poem है. Here are a few word meanings. Sprang means rapidly upward move करना, jet जैसे move करता है. Scaled, covered, पूरा एरिया कवर कर लेना. Inevitability मतलब जिस चीज को avoid नहीं किया जा सके, unavoidable. Haphazard, haphazard मतलब without any plan or without any order, random. जैसा कि वो जो सिटी के प्लान के लिए बोल रहा था ना, how cities are located, ना कैसे establish की हुई है, that is haphazard. Delineated means shown, किसी चीज को show करना. Okay, these are the word meanings. जब आप poem पढ़ोगे, these will be helpful to you. Let's do a few question answers. 2 question answers करके देखते हैं. What is the poet trying to bring out about human beings, the earth and learning? अब poet ने कुछ अपना थोड़ी चीजें ऑब्जर्व की है ना, उसकी थोड़ी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वो क्या है. The poet is trying to bring out the fact that human beings have achieved a lot of knowledge about the earth and beyond. सारी चीजें समझ ली हैं ना, अर्थ के बारे में, उसके ऊपर क्या है, स्पेस, एवरीथिंग सब समझ लिया है ह्यूमन बीइंग्स ने, है ना. We have learned much about the earth, its shape, its emergence of cities and nations, सब, everything.
but we have failed to learn how to love each other, live peacefully on this wonderful planet. But हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं कि हमें मिलके कैसे रहना है, पीसफुली एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, ये हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए, ये हम लोग अभी तक भी नहीं सीख पाए. Next question is, what geographic lessons did the poet in the jet learn when the jet reached 10,000 feet? एक पॉइंट पे आके तो उसको ये सिर्फ सिटीज दिख रही थी ना, तो जब वो 10,000 फीट पे पहुंचा तब क्या हुआ उसके साथ? From a height of 10,000 feet above the ground, the Earth's cities were found located on the banks of rivers and a little above the river level in the valleys. तब उसको क्या रियलाइज हुआ कि जितनी भी सिटीज है वो कहाँ लोकेटेड है? वाटर बॉडीज के अराउंड, वाटर रिसोर्सेज जितने भी उसके अराउंड, और थोड़ा वाटर रिवर्स के ऊपर वेलीज में. ठीक है, यही सारी जो सिटीज हैं वो लोकेटेड है. एंड वी नो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की क्या है? fertile land and water, right? So this was our poem, everyone. I gave you the summary, the meanings, and 2 question answers for you to think about. Okay, so we'll meet in our next lecture. I hope you understood the chapter. Thank you.